Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the 8th session of Virtual Reality. And the topics covered are Sunblade 1000 Architecture, SGI Computer Architecture, Infinite Reality, Distributed Virtual Reality, what is graphic card diagram, graphics acceleration, computer cluster diagram, and two user shared virtual environments. First of all, Sunblade 1000 architecture. The Sunblade series was a computer workstation line developed and sold by Sun Microsystem from 2000 to 2006. Sunblade एक कंप्यूटर वर्कस्टेशन की सीरीज है जिसको कि डेवलप किया था सनब्लेड ने और बाद में उसको सोल्ड किया था सन माइक्रोसिस्टम ने फ्रॉम 2000 to 2006. The Sunblade architecture was based on the UltraSpark microprocessor family. जो Sunblade 1000 आर्किटेक्चर होता है वो UltraSpark माइक्रोप्रोसेसर फैमिली पर बेस्ड होता है. द रेंज रिप्लेस द अर्लियर सन अल्ट्रा वर्कस्टेशन सीरीज. पहले सन अल्ट्रा वर्कस्टेशन सीरीज आती थी, उसको Sunblade 1000 आर्किटेक्चर ने रिप्लेस कर दिया है. The 1500 and 2500 series came in two variants, the earlier red series and the later silver series. जो पहले 1500 and 2500 सीरीज आती थी वो टू वर्जन्स या टू वेरिएंट्स में आती थी, जिसमें वन रेड सीरीज होती थी एंड अदर वन सिल्वर सीरीज होती थी. The silver series were enhanced version of the red series, a faster CPU being the key differentiator. जो सिल्वर सीरीज थी वो रेड सीरीज की एडवांस वर्जन थी और इसमें फास्टर सीपीयू होता था जो डिफ्रेंशिएट करता था रेड एंड सिल्वर सीरीज. इसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती थी बिकॉज इट कंटेन्स अ फास्टर सीपीयू. The Sunblade series was supplanted by the Sun Java Workstation line in 2004 और Sunblade सीरीज को Sun Java Workstation ने 2004 में supplanted किया था. This product line, despite its name, was not a Blade series system. और जैसे कि इसका नेम से क्लियर है, बट ये ब्लेड सर्वर सिस्टम की सीरीज नहीं थी. इन 2006 Sun did produce an unrelated blade server product line which reused the Sunblade name. बाद में 2006 में Sun ने एक अनरिलेटेड ब्लेड सर्वर प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की जिसको कि Sunblade नेम फिर से यूज किया गया, मीन्स जिसमें फिर से Sunblade के नेम को यूज किया गया. Here is the Sunblade 1000 architecture workstation. This one is the workstation. Now SGI computer architecture. There were really two series of the visual workstation. All were based on Intel processors. The first series 320 and 540 used SGI's AR Cloder, Prom and Cobalt video chipset. The remainder were essentially standard PCs. अगर हम विजुअल वर्कस्टेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास टू सीरीज आती हैं, 320 एंड 540 सीरीज, जो कि इंटेल प्रोसेसर पर बेस्ड होती हैं एंड SGI आर्क लोडर, प्रोरोम एंड कोबाल्ट वीडियो चिपसेट का यूज करती हैं.
The 320 and 540 use a unified memory architecture represented by UMA memory system. जो 320 and 540 आर्किटेक्चर है वो यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर को यूज करती हैं. They shared the video and system memory and ran them at the same speed and allowed for up to 80% of the system RAM to be applied to video memory. इसके थ्रू हम वीडियो एंड सिस्टम मेमोरी को शेयर कर सकते हैं और इसके थ्रू जब कोई वीडियो रन की जाती है या कोई भी प्रोसेस रन किया जाता है तो वो सेम स्पीड से रन होता है और हम 80% रैम मेमोरी को वीडियो मेमोरी के लिए यूज कर सकते हैं अगर हम SGI कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यूज कर रहे हैं तब. The allocation was static, however, and was adjusted via a profile. इसमें जो मेमोरी अलोकेशन होती है मींस SGI कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी अलोकेशन स्टैटिक होती है. The 320 and 540 also used the on-board Cobalt video adapter, which was SGI's proprietary graphic chipset. 320 एंड 540 में जो बोर्ड यूज होते हैं वो कोबाल्ट वीडियो एडेप्टर यूज करते हैं जो कि SGI की प्रोप्राइटरी ग्राफिक चिपसेट होती है. द firmware the systems used was a PROM that enabled booting into a graphical subsystem before the OS was loaded. जो फर्मवेयर होता है सिस्टम्स में वो प्रोरोम को OS लोड होने से पहले ही सिस्टम में लोड कर देता है. इन दिस रिगार्ड दे रिजेंबल द LRIX MIPS line of SGI computers such as the SGI OS2. Now infinite reality. Infinite reality referred to 3D graphics hardware architecture and a family of graphic systems that implemented the aforementioned hardware architecture that was developed and manufactured by Silicon Graphics from 1996 to 2005. Infinite reality 3D object means 3D graphic hardware architecture को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि हम ग्राफिक सिस्टम्स का यूज करते हैं एंड सिलिकॉन ग्राफिक्स का भी इसमें यूज किया जाता है. इसमें जनरली हम 3D ग्राफिक्स के साथ वर्क करते हैं. द इनफाइनाइट रियलिटी वाज पोजिशन एज सिलिकॉन ग्राफिक्स हाई एंड विजुअलाइजेशन हार्डवेयर फॉर देयर MIPS IRIX platform and was used exclusively in their Onyx family of visualization system, which are sometimes referred to as graphics supercomputers or visualization supercomputers. इनफाइनाइट रियलिटी में हम सिलिकॉन ग्राफिक्स हाई एंड विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं जिसमें कि हम डिफरेंट ग्राफिक्स सुपर कंप्यूटर्स एंड विजुअलाइजेशन सुपर कंप्यूटर्स का भी यूज करते हैं. मीन्स हम इनको सुपर कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स सुपर कंप्यूटर्स या विजुअलाइजेशन सुपर कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं. द इनफाइनाइट रियलिटी वाज मार्केटेड टू एंड यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज कंपनीज and universities that are involved in computer simulations, digital content creation, engineering and research. Infinite reality को different large organizations यूज करती हैं जैसे कि हम इसको जैसे different कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज इसको यूज कर सकती हैं कंप्यूटर सिमुलेशन में या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पर्पस के लिए भी इनफाइनाइट रियलिटी का यूज किया जा सकता है. नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल रियलिटी. डिस्ट्रीब्यूटेड VR इज अ रिलेटिव न्यू एरिया ऑफ रिसर्च. डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल रियलिटी एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि अभी इवॉल्व हो रहा है. फ्यूचर में हम इसको
अच्छे से यूज कर पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स आर नाउ लार्जली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रेदर देन रिक्वायरिंग द डेडिकेटेड हेड अप डिस्प्लेज, इनपुट कंट्रोलर एंड रेंडरर हार्डवेयर ऑफ द पास्ट। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स लार्ज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। करंट हाई एंड वर्क स्टेशन कैन नाउ रेंडर scenes described in VRML and other languages in near real time। इसमें हम हाई एंड वर्क स्टेशंस का यूज करते हैं किसी भी सीन को रेंडर करने के लिए, और इसमें हम VRML लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं या डिफरेंट अदर लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो इनपुट एंड आउटपुट ऑन डेस्कटॉप मशीन्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग। We expect to see the development of multi-user virtual environments over the internet shortly। इसमें हम ऑडियो वीडियो एज अ इनपुट या डेस्कटॉप मशीन्स पर कुछ आउटपुट शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज करते हैं। In this paper we present an architecture for distributed virtual reality। We outline the necessary network support and a transport protocol and the way that distributed virtual reality application would interact the API if you like with each other using their mechanisms। Distributed virtual reality में हम different workstations का यूज करते हैं और इसमें हमें नेटवर्क सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट वर्क स्टेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वाया नेटवर्क। इट इज अ गोल ऑफ द आर्किटेक्चर टू प्रोवाइड पॉलिसी फ्री मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड VR एप्लीकेशन बिल्डर। ये आर्किटेक्चर का गोल होता है कि वो कौन सी एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई और डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इट इज नॉट अ गोल टू मेक इट इजी टू प्रोग्राम सच एप्लीकेशन, सिंस इट इज ऑल टू इजी इन प्रोवाइडिंग इजी टू प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टूल्स that let the application builder overload the network and at the same time provide suboptimal performance for the user। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल रियलिटी को अचीव करना इतना इजी नहीं होता है, इसके लिए हमें काफ़ी हार्डवर्क करना होता है, क्योंकि हमें एक तो परफॉर्मेंस देनी होती है और दूसरे टाइम पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स टूल्स को भी हैंडल करना पड़ता है। दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। नाउ व्हाट इज अ ग्राफिक कार्ड? The graphic card is responsible for delivering the image you see on your PC monitor। कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी इमेज देखते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, वो सब ग्राफिक कार्ड की वजह से ही पॉसिबल होता है। Its GPU graphical processing unit process the data and changes it into a signal to the monitor। ग्राफिक कार्ड में एक यूनिट होती है जिसको हम GPU कहते हैं, जो कि डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसको सिग्नल में चेंजेस करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स टू अ ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड को चूज करते टाइम हमें काफ़ी फैक्टर्स को देखना पड़ता है। चूजिंग वन कैन बी अ ट्रिकी बिजनेस these days as there is so much technology that is different in each new graphic card releases। Nowadays we have lots of graphic card that have different technologies, so it is very difficult to how to choose a high quality graphic card। Here is the graphic card diagram। This one is the graphic card that is put in the processor and we are able to see the videos।
and the images on the computer screen due to this graphic card. Now graphics acceleration. When PCs first came and for some time after, the graphics card purpose was only to display the image on the screen. अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें तो ग्राफिक कार्ड का यूज जस्ट इमेजेस को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता था. द अमाउंट ऑफ मेमोरी you got on a graphic card was very small and was not needed to a great extent. और जो हमें मेमोरी मिलते हैं, ग्राफिक कार्ड्स की मेमोरी होती है, वो काफ़ी कम होती है और हम उसको ग्रेट एक्सटेंट तक यूज नहीं कर सकते हैं. Today's graphic cards do more than just display an image. They help the processor with the job of processing when it comes to the graphics. Nowadays जो ग्राफिक कार्ड्स यूज किए जाते हैं वो काफ़ी कैपेबल होते हैं. उनका एम जस्ट इमेजेस को डिस्प्ले करना नहीं होता है, वो प्रोसेसर्स को भी हेल्प करते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए. कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए या फिनिश करने के लिए वो प्रोसेसर्स की हेल्प करते हैं. The graphics card would in effect accelerate the process of displaying the image on screen. ग्राफिक कार्ड एक्सेलरेट इफेक्ट का यूज करते हैं किसी भी इमेज को स्क्रीन पर दिखाने के लिए. इसी की वजह से हम कोई भी इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाते हैं. Now computer cluster. A computer cluster consists of a set of loosely connected computers that work together so that in many respects they can be viewed as a single system. कंप्यूटर क्लस्टर में डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड होते हैं और एज अ सिंगल कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं. ऐसा अगर हम कोई वर्क असाइन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है और हमें लगता है कि वो एक ही सिस्टम ने वर्क किया है. The components of a cluster are usually connected to each other through fast local area networks. Each node computer used as a server running its own instance of an operating system. और जो डिफरेंट क्लस्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ईच नोड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा होता है. Computer clusters emerged as a result of convergence of a number of computing trends, including the availability of low-cost microprocessors, high-speed networks, and software for high-performance distributed computing. कंप्यूटर क्लस्टर डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि लो कॉस्ट माइक्रोप्रोसेसर्स, हाई स्पीड नेटवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. इन सब कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से ही हम क्लस्टर कंप्यूटिंग को अचीव कर पाते हैं. क्लस्टर्स आर यूजुअली डेवलप्ड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी ओवर दैट ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर while typically being much more cost effective than single computers of comparable speed or availability. क्लस्टर कंप्यूटिंग के थ्रू परफॉर्मेंस हमें हाई परफॉर्मेंस अचीव होती है एंड हमें हाई अवेलेबिलिटी अचीव होती है एज कंपेयर टू अ सिंगल कंप्यूटर विद द सेम कॉस्ट एंड द सेम स्पीड. Computer clusters have a wide range of applicabilities and development, ranging from small business cluster with a handful of nodes to some of the fastest supercomputer in the world, such as IBM's Square. कंप्यूटर क्लस्टर हम डिफरेंट साइजेस में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल साइज में या फिर लार्ज साइजेस में भी हम कंप्यूटर क्लस्टर को क्रिएट कर सकते हैं. स्मॉल बिजनेस के लिए हम स्मॉल क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं एंड लार्ज बिजनेस के लिए हम लार्ज क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं. Here is the computer cluster diagram. A load balancing cluster with 2 servers and 4 workstations. These are 2 workstations. These are 2 servers and these are 4 workstations.
that are connected to these two servers. Now do it yourself. First question for you is, what are computer cluster? And second question for you is, what is graphic card? This is the end of session 8. Thank you. Happy learning, we learning.